Good morning, sir. On So in yesterday class, we have discussed the angle of bite, length of contact. So today we are going to discuss the condition for self-entry and role separating force, which are very important. So if you have any doubt from angle of bite and length of contact, after that we will solve some numerical based on these formulae. Okay. So what is the role separating force and the condition of self-entry? As we know, in last class we have discussed the friction plays a very important role in you can say rolling process. My voice is audible? Yes, sir. आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. ओके चलिए कभी कभी ये आएगा बीच बीच में, अभी काम चल रहा है वर्कशॉप में, तो आपको अगर आवाज़ सुनाई ना दे आप मुझे बोल सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ और लाउडली बोल सकता हूँ, ठीक है? हम लोग पिछली क्लास में एंगल ऑफ बाइट कैसे निकालते हैं, उसका कैसे ड्राइव करते हैं वो हमने देखा। उसके बाद में लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री। कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री क्या है? Rolls are rotating at their uniform speed. So your slab must have the tendency to drawn into the nave or in between the rolls without any support. Okay, that condition is known as the condition of self entry of the slab. कि आपकी जो स्लैब है, जो रॉ मटेरियल है, ऑटोमेटिकली आपके जो रोलर्स के जो निब हैं उसके अंदर चली जाए, हमें कोई भी सपोर्ट लगाने की जरूरत ना हो। और वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब द फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द वर्कपीस इज सफिशिएंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इफ both these surfaces are smooth, then it is a very difficult task to enter the slab in between the rolls, because there will be a continuous slipping between the rollers as well as the workpiece. So we have to calculate the different components of friction as well as the rolling pressure. Okay, so this is very simple task. You can see the theory. और वो क्या कंडीशन होगी कि अगर आपके फ्रिक्शनल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो अगर ज्यादा है तो आपकी जो मटेरियल है वो सिंपली एंटर कर जाएगा निब के अंदर। निब क्या होती है? जो ये पोर्शन है इसको हम निब बोलते हैं। जो सिंपल ये पोर्शन है इसको, ओके माय पेन इज here, you can see this portion is also known as the nib of the roller. Okay, so the material will be drawn into the nib if the horizontal component of the friction force is larger or at least equal to the opposing horizontal component of the normal force. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। The summation of all the forces in x direction is 0. That is a equation of equilibrium in horizontal direction. And similarly, if I write the summation of fy in equals to 0, it means all the algebraic sum of all the forces along y direction must be 0. It shows the equilibrium. There is no unbalanced force. But in the case of rolling process, there must be a unbalanced force. Means the if we resolve all the forces along the horizontal direction, because we are very much concerned with the horizontal direction, because slab is feeding in horizontal direction. Is it clear?
सो व्हाट वी आर टेकिंग द कंडीशन, कैसे ये पॉसिबल है कि अगर आपके जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है वो अगर ज्यादा है, किसके कंपोनेंट से, रोलिंग फोर्स का जो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ओके, so now we are going to resolve all the forces. First we will see how many forces are acting at the point of entry. So I can take, you can see this image also, and I can understand with this a whiteboard. कोई आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं. देखिए कैसे हमें इसको समझना है. This is a roller, and we can assume that at this point, oh okay, at this point roller is start entering. So here there will be a force which is acting onto this point A. Let's suppose this point is A. This pressure is known as the Px, the rolling pressure. Okay, and is there any other force? Yes. So the friction force will come because there is a relative motion between the two components. What is these component? Roller and the workpiece. If there is a relative motion, so the friction will come into the existence. But one thing more I would like to tell you, that at point neutral point, the value of friction force is 0. Okay, because there is a no relative motion, it means there is a no friction between the we can say the roller and the workpiece. So here we have another component, that is a frictional force, that is denoted by mu px. Why I am writing the mu px? Anyone? कोई मुझे बता सकता है कि mu px क्यों मैं लिख रहा हूं, जबकि इसका फॉर्मूला तो mu r होता है. बट by I am writing the mu px because we are concentrating this point A. So this is a normal reaction because at point A the px is a normal reaction. You can see this is the point of contact. So the normal is what? The perpendicular to the point of contact. So this is the point of contact. Now we can resolve all the forces along horizontal direction and the vertical direction. So I'm writing here the x-axis and y-axis. Okay, now first of all we have to calculate the angles. Okay, हमें एंगल भी फाइंड आउट करने होंगे कि ये एंगल क्या होगा. कोई मुझे बता सकता है ये एंगल क्या होगा? ये आपका मान लीजिए ऐसे ये बनता है ट्रायंगल, और ये आपका क्या होता है थीटा, जिसको हम बोलते हैं बाइट एंगल. तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 minus 90 plus theta. अरे 90 माइनस थीटा बोलिए ना. 90 माइनस थीटा होगा ना, ये नहीं है, नहीं समझ में आया आपको? अगर ये आपका जो फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो 90 माइनस, ये यहां से 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? क्योंकि हमें इसको रिजॉल्व करने के लिए भी चाहिए होगा एंगल. तो इस बताइए इसका कितना एंगल होगा? यार आपकी ज्योमेट्री तो बड़ी कमजोर है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कितना एंगल होगा ये सर एक मिनट. एक्स के बीच में ये एंगल जो मैंने अभी आपको दिख रहा है, ये एंगल बताइए, ये एंगल कितना होगा? The angle between this horizontal line, which is known as the x-axis, and this line, which is a frictional force acting at the point of contact, mu px. This angle will be theta. If this is 90 minus theta, and px is making a 90-degree angle with this mu px, because this is normal to this point of contact. So which one? Yes.
नहीं यार सर 90 कैसे बना रहा थीटा के साथ? आप तो यार समझ, देखो मैं, ये कोई रोलर है, साइकिल समझते हैं, साइकिल के टायर में देखिए, ये मान लीजिए ये फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर मान लीजिए ये इंक्लाइन नहीं होता तो ये क्या होता है, सिंपल यहाँ पे फोर्स हाँ एक्ट, ये फ्रिक्शनल ऐसे फोर्स है, चल जाता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, ये 90। बनता है ना। ऐसे आप लोगों ने कई क्वेश्चन किए होंगे फिर आपके मैकेनिक्स में, नहीं किए हैं क्या? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये रोलर है, ये पर सर वो तो सर वो पूरा होता ना एंगल 90, तो ये तो सर इसमें ये हाफ जा रहा है ना, तो पूरा तो ही नहीं है सर इससे जो टच कर रहा है हमारा पीएक्स से। एक मिनट रुकिए, इस तरह के न्यूमेरिकल तो आपने किए होंगे, ये वही यस सेम तो है, ये वही सेम केस है। मैं अब इसको इसको लाइन के थ्रू, जैसे मैंने इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे मुझे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, ठीक है। और अब क्या है, देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, जो कि रोल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये एंगल आपको पता है, कौन सा एंगल, ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल मेरे को, ये देखो मैंने पूरा ज्योमेट्री बना दिया, अब मैं इसको एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देता हूं, कहां से होगी, लाइन की थिकनेस, चलिए सर वो जो कंफ्यूजन है ना वो सर इसमें है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हाँ इसके साथ 90 डिग्री बना रही है या जो हमारा पीएक्स फोर्स है उसके साथ 90 डिग्री मैं बना रही बता है? रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, ए पर हमने, ए पर हमने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, इस पर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और इस पर ये रोलर क्या है, ये पीएक्स फोर्स लगा रहा है, पीएक्स प्रेशर लगा रहा है, पीएक्स पीएक्स प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट, जो नॉर्मल होता है जहां पर कांटेक्ट हो रहा है उसके अलोंग काम करता है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस लाइन पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये म्यू इनटू फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू, इनटू पीएक्स। और ये जो पॉइंट है, ये जो ये पीएक्स है, इस इसके परपेंडिकुलर है, 90 होगा तो इसके परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है एक तरह से। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 90 90 माइनस थीटा माइनस अभी आपने थीटा बताया हो ना, ये जाएगा। 90 सर minus theta, so this angle will be theta. Now you can resolve all the forces as per your knowledge. Please resolve all the forces and write how we can resolve. px को resolve करिए पहले, px को resolve करेंगे तो किस तरह से आएगा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, px cos थीटा आएगा या sin थीटा आएगा, अरे मैं इस ए पॉइंट पर फोर्सेस को रिजॉल्व करके लिख रहा हूं, एक मिनट सर, साइन थीटा px sin थीटा, और इसको यहां पर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, cos थीटा। px cos ऑफ थीटा, तो हमारा px रिजॉल्व हो गया। मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है, ये डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिनट, सही तो है सर। सर ये उल्टा नहीं लिख दिया सर, पीएक्स साइन थीटा उधर आएगा, उल्टा लिखा गया है, मैं कर रहा हूं उसको के लिए, इधर से परपेंडिकुलर लेंगे तो वो 90 माइनस थीटा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो px, क्योंकि जो एंगल है वो कितना है,
ना फिर तो सर उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो 90 माइनस थीटा है इधर, इसको ये पॉइंट एंगल ऑफ जो है वो कॉन्टेक्ट एंगल है। हम ये देखिए एक ये हो गया यहाँ पे px 9 जितना एंगल है उतना ही तो लिखते हैं 90 माइनस थीटा, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे px cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा px sin थीटा हो जाएगा, ये px cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। जितना एंगल दे रखा है हमें वही उसी से रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बताइए म्यू पी एक्स को रिजॉल्व करिए, म्यू पी एक्स को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा म्यू पी एक्स, कौन बताएगा, कॉस ऑफ cos थीटा और यहाँ पे क्या आएगा म्यू tan पी थीटा एक्स साइन थीटा। और हमको वो क्या करना है, वी रिजॉल्व भी करना है, equate एक्सेप्टेशन तरफ we हो have जाएगी। to equate the horizontal component forces. Why we are equating, we can calculate the condition of self entry. Okay, now you can see, मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं जो आप लोग खुद से करिए, कुछ भी नहीं है। देखिए ये है px रोल्स फोर्स है या रोल प्रेशर बोलते हैं सिंपली px। ये कितना एंगल बना रहा है यहां से, देखिए ये एंगल कितना है, ये कितना एंगल है बताइए, 90 माइनस थीटा। तो अगर हम आप इसको रिजॉल्व करोगे इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, px cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, px sin थीटा। तो मैंने डायरेक्टली px sin थीटा लिख दिया है। अरे ये तो रेजोल्यूशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इसमें सभी को क्लियर हो रहा है। गौरव बताइए, अभिषेक, अनुराग, अगर ये Yes, नहीं sir. समझ में आया तो नहीं कर पाएंगे Yes, न्यूमेरिकल sir. आप लोग। कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें, px एंगल दे रखा है 90 डिग्री, इसको केवल मैंने रिजॉल्व किया है। अब इस जो म्यू px फोर्स है इसको रिजॉल्व करना है, और इसका एंगल दे रखा है थीटा, इसका एंगल कितना दे रखा है, ये थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा म्यू px cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मेरे को वर्टिकल से मतलब नहीं है। वी हैव टू चेक ओनली द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का क्या रोल है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसा कि ये कंडीशन दे रखी है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट से ज्यादा होना चाहिए, यही तो कंडीशन दी है। देखो इसमें लिखा हुआ है, the material will be drawn into the nave if the horizontal component of the friction is larger. So I have written the greater sign and equals to px sin theta. Is it clear? This is the condition for self entry. The mu px cos theta की वैल्यू, ये जो दिख रहा है ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट दिख रहा है आपको जो आपने, सर जो अपना ये px sin थीटा है, ये सर कौन सा मतलब कंपोनेंट है, ये x डायरेक्शन का y डायरेक्शन का मतलब सर? ये वाला। यस सर, यस सर। अरे भैया ये तो गलत पूछ रहे हो तुम गौरव। अब बताओ px, इसको रिजॉल्व करोगे px को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या होगा, px cos 90 माइनस थीटा। तो अब जब इसको px, ठीक है सर, ठीक है, को क्या लिखेंगे, px sin थीटा, वही तो सर, मैंने लिखा है। सर हाँ ये म्यू पी एक्स कॉस थीटा, इसका मीन्स ये हुआ कि जो पी एक्स साइन थीटा उससे ज्यादा हमारा फोर्स होना चाहिए, तभी ने मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा मतलब। बिल्कुल, तो मतलब सर जो कंपोनेंट फोर्स है से ये ज्यादा वाला हमारा जो, फ्रिक्शन होना चाहिए। हाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तभी तो जाएगा, सेल्फ एंटर करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एंटर करेगा, कर ही नहीं पाएगा। यही तो कंडीशन बताइए, ये देखो लिखी भी है सामने, द मटेरियल विल बी ड्रॉन इनटू द नेव if the horizontal component of the friction force is larger. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम रहेगी तो वो एंटर करेगा ही नहीं, वो वहीं के वहीं उस पे स्लिपिंग होती रहेगी। आ गया सर, आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करिए, आगे आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। px से px कैंसल्ड आउट हो गया, समझ में आ रहा है। मैं cos थीटा को इधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या निकल के आएगी, म्यू
is greater than and equals to tan of theta. So this is a very important condition for सेल्फ एंट्री। और कई बार गेट और जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि रोलिंग के केस में सेल्फ एंट्री कंडीशन क्या होती है, म्यू ग्रेटर देन टेन थीटा, म्यू लेस देन टेन थीटा, या म्यू और भी बहुत सारी वो कंडीशन दे देता है, म्यू इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, इस तरह से। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है हमेशा। ये किसके लिए है कि अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो तो आपके हाथ में है बढ़ाना या घटाना, आप जितना उसको रफ रखेंगे उसी के हिसाब से म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप एंगल ऑफ बाइट के बेस पे थीटा क्या है, थीटा क्या है ये बताइए, ये एंगल ऑफ बाइट है ना, जो हमने कल ड्राइव किया था। तो ये रिलेशनशिप बताता है, अगर मान लीजिए आपको एंगल ऑफ बाइट की बारे में पता है कि कितने एंगल पे रोलर कट अपने मान लीजिए करेगा, कितना सबस्टैंडर्ड एंगल बनाएगा, तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, म्यू की वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं। हम लोग म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल के बेस पे कि अच्छा ये इतना एंगल हमें चाहिए फॉर्म करने के लिए। देखो अगर आप रोलर खरीद के ला रहे हो, मेरी बात को समझिएगा, उसका डायमीटर आपको क्लियर है कि इसका इतना डायमीटर है। अगर डायमीटर क्लियर है तो इजीली आप बता सकते हो कि कितना एंगल सबस्टेंड करेगा जब वो रोलिंग करेगा। अगर आपको वो एंगल पता है तो आप म्यू की वैल्यू भी पता कर लोगे इजीली कि हमें म्यू कितना रखना है सरफेस में, जिससे कि हमारी जो स्लैब है वो ऑटोमेटिकली फीड होती रहे। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है बताइए। आ रही है सर। हम रोलर का फ्रिक्शन कैसे मालूम करेंगे? ये तो सरफेस से पता चलता है ना, न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे? स्मूथ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि इसका फ्रिक्शन इतना है? वो हमेशा आपको गिवन होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द वर्कपीस इज दिस वैल्यू। सेल्फ एंट्री होगी या नहीं होगी, उसमें आपको एंगल ऑफ बाइट या इस तरह से, या उसमें कह रखा होगा ये आपका म्यू है, वैल्यू है, आप बताइए कि सेल्फ एंट्री कंडीशन क्या होगी, और या आपको थीटा की वैल्यू पूछ लेगा कि सेल्फ एंट्री कंडीशन में थीटा की वैल्यू बताइए। अभी हम लोग इसके बाद में न्यूमेरिकल देखेंगे। अब आपको मैं आगे का इसका डेरिवेशन बताता हूं। एक पार्ट तो इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या है कि हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप उस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने कल आपको दिखाया था, कौन सा वाला था बताइए। मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर ले रहा हूं, पिथागोरस थ्योरम जिसमें लगाए थे, हाँ, जिससे मैंने सारे इक्वेशंस ड्राइव कराए थे। जैसे ये वाला जो इक्वेशन है, ये ध्यान है आपको, इसको हम लेंथ ऑफ कांटेक्ट बोल रहे थे, और ये वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एच बाई 2। ये बात समझ में आ रही है। और ये कितनी वैल्यू होगी, आर माइनस डेल्टा एच बाई 2, डेल्टा एच बाई 2। h/2। अगर और ये थीटा है, तो मैं अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल अपॉन आर माइनस डेल्टा एच बाई 2 लिख सकता हूं। यस सर। तो वही लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल माइनस आर, एल डिवाइडेड बाई आर माइनस डेल्टा एच बाई 2। अब इसको यहां पे देखिए, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स। ये नेग्लेक्ट, हम ये जो हायर टर्म्स हैं डेल्टा एच बाई 2, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, क्या हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्यों हम बोल रहे हैं कि जितना ये वैल्यू कम होगी, और सर अगर हम इसको देखें यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, इसको देखिए यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी थी, अंडर ऑफ आर डेल्टा एच, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, आर माइनस डेल्टा एच बाई 2।
ये याद है? अरे बोलिए। यस सर, यस सर। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाई नेग्लेक्टिंग द स्मॉलर टर्म डेल्टा एच बाई 2 you can get the maximum draft, that is delta h. So what we can write, tan theta is equals to mu is equals to क्या वैल्यू निकल के आएगी ऊपर से बताइए। इसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं डेल्टा एच बाई 2 को नेग्लेक्ट करके, डेल्टा एच बाई 2 आर। अब इससे और सिंप्लीफाई करिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, या इसको देखिए यहां पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। म्यू इज इक्वल्स टू क्या बचेगा यहां से, डेल्टा एच बाई आर रूट इफ आई स्क्वायर इन बोथ साइड। ये बात समझ में आ रही है ना कैसे आया, ये ऊपर आर है, आ रही है। कैंसिल कर दिया तो अंडर रूट ऑफ आर हो गया। अब दोनों को मैं स्क्वायर कर रहा हूं, सो व्हाट वी कैन गेट, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर मैक्सिमम ड्राफ्ट। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम ड्राफ्ट, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर, यहां पर भी लिखी है। ये बात समझ में आ रही है सभी को, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। अगर आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है और रोलर रेडियस दे रखा है तो आप घर बैठे ही बता सकते हैं, आपको साइट पे जाने की भी जरूरत नहीं है कि कितना ड्राफ्ट होगा मैक्सिमम। ये भी बोल सकते हैं कि जितना बड़ा आर रेडियस होगी हमारा उतना ही फ्रिक्शन कम, म्यू कम होगा। रोलर रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ड्राफ्ट होगा, ये कह सकते हो। और ये कह सकते हो कि अगर आपके रोलर और वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ड्राफ्ट होगा, क्योंकि म्यू और आर में क्या रिलेशन है सर यहाँ इसका पर? मतलब, हाँ जी, म्यू और आर में क्या रिलेशन है सर? जितना ज्यादा आर होगा उतना ही कम म्यू होगा। हाँ, म्यू की रिक्वायरमेंट कम होगी अगर रोलर आप बढ़ा रहे हैं। अगर डेल्टा एच आपका फिक्स है, डेल्टा एच फिक्स है कि आपको इतना डेल्टा एच चाहिए, मतलब रिडक्शन थिकनेस में चाहिए, तो अगर आप रोलर बढ़ा रहे हैं तो म्यू की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, म्यू बढ़ा रहे हैं तो आर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, रोलर का डायमीटर कम करना पड़ेगा। और देखिए दोनों में ही अगर आप रोलर का डायमीटर कम कर रहे हैं तो आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, जो रोलर के लिए बनाने के लिए हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम हो जाएगी। अब इसके बेस पे देखो ये डेरिवेशन हो गया, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दिखाता हूं तो और क्लियर होगा आपको हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस सेल्फ एंट्री कंडीशन। ये फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, ये नोट कर लीजिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। और मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें कई बार पूछा गया है कि जो मैक्सिमम ड्राफ्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, कि बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द ड्राफ्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्ट विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, is it clear? Now see this numerical. Now we are going to start the first numerical. We have the 50 minutes, so please do this numerical first. सभी लोग प्लीज ओपन कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे जरूर इस तरह के। आप लोग कर रहे हैं? यस सर। हाँ, नोट करिए डेटा क्या क्या है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं धीरे धीरे, या हम लोग वेट कर लेते हैं कि कौन इसको बताता है सही आंसर। सही आंसर आपको चैट में लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है आपको? सही आंसर आपको चैट में लिखना है कि ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। इससे ये भी पता चलेगा कि कितने लोग सुन रहे हैं। जितने लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसका मतलब है कि उतने लोग सुन रहे हैं और सभी सो रहे हैं। A 4 mm thick sheet is rolled with 300 mm diameter. Rolls to reduce thickness without any change in its width. ठीक है, 4 mm थिक शीट है जिसको रोलिंग किया जा रहा है 300 mm डायमीटर रोल से,
तो ये आप आर की वैल्यू मिल सकती है आपको, और इनिशियल थिकनेस मिल गई। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट, क्या सर 1.5 आ रहा है क्या? हाँ जी, सर 1.5 आ रहा है क्या? अरे गौरव जी आपको यार बताना नहीं था, आप सभी लोग लिख देंगे उसमें कमेंट। सर वो डिसेबल आ रहा है सर, वो वहां से चैट हो ही नहीं रहा है। चैट डिसेबल क्यों हो गया? सर चैट चैट डिसेबल हो गई है? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कितने लोग और सही बताते हैं। कितने कितने लोग और सभी का हो गया है? 1.5 आ रहा है। पूछ क्या रहा है? द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ द सीट दैट कैन बी प्रोड्यूस इन ए सिंगल पास। एक सर 2.5 आएगा। 2 हाँ, तो ये फाइनल थिकनेस पूछ रहा है ना? हाँ जी, 2.5 आ रहा है। 2.5 यस सर। 1.5 तो डेल्टा ओके, है। चलिए देखते हैं। देखो इनिशियल थिकनेस जिसको हम बोलते हैं H1, H1 कितना है? 4 mm। ठीक है, R कितना होगा? 150 mm। और म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। पूछ क्या रहा है? H2। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या होता है? H1 माइनस H2। अगर हमें डेल्टा H पता चल जाए, H1 हमें नोन है ऑलरेडी और ये हमारा अननोन है, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो और देखो डेटा आपके पास में इस तरह से दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा? मैक्सिमम ड्राफ्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेल्टा H इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। फॉर्मूला है, देखिए गेट 2006 में आया है ये न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स में है, देखिए लिखा भी है न्यूमेरिकल 2 मार्क्स। तो आप इसको अब बताइए, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1। 0.1 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितना है? 150। बताइए कितना आ रहा है? मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, क्या है? आप लोग तो गलत बताएंगे, कुछ किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। चलो मिल गया मेरा कैलकुलेटर, ऑन ही नहीं हो रहा है। बताइए किसका कितना आंसर आ रहा है? कितने लोगों का हो गया ये बताइए? 2.5 आएगा सर आंसर। 2.5 mm सर 2.5 ही सही है सर। 0.5। गौरव 2.5 mm 2.5 आ रहा है सभी का? यस सर, वो सर मैंने जल्दी जल्दी में सर क्वेश्चन पढ़ा नहीं, वो डेल्टा एच डायरेक्ट ही बता दिया आपको। डेल्टा डायरेक्ट कैसे? मतलब सर जो मैं 1.5 अच्छा, बता रहा ओके था वो ओके डेल्टा एच ही ओके, बता रहा था। ठीक है। तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेरे पास सॉल्यूशन भी होगा शायद, हाँ अगली स्लाइड में उससे पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सभी का हो गया है? यस सर। है इसका सॉल्यूशन 2.5 mm है। ठीक है, डेल्टा एच आपका आएगा शायद वो 1.5 आ रहा होगा। हाँ, तो 4 माइनस 1.5 हम लोग कर देंगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया सभी का। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, गेट 2007। द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक सीट इज रिड्यूस्ड। आप लोग सभी इसको सॉल्व करिए, फिर मेरा रिक्वेस्ट है। The thickness of a metallic sheet is reduced from initial value of 16 mm to a final value of 10 mm in a one single pass, rolling with a pair of cylindrical rollers, each of diameter 400 mm. Okay, find the bite angle. आपको bite angle बताना है। चलिए इसको देखते हैं कौन सही बताएगा। आपको थिकनेस ऑफ द मेटल रिड्यूस्ड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू। सो H1 क्या क्या डेटा दे रखा है? H1 दे रखा है 16 mm and H2 we have 10 mm. Okay, so from this data we can calculate the draft that is equals to 6 mm. 6 mm draft आ गया। इसके बाद में क्या दे रखा है? पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल रोलर्स ईच ऑफ भी आएगा सर। एंड कैपिटल R दे रखा है आपको क्या?
D आएगा तो D। 9.936 डी। 9.936. कितना आ रहा है? 9 सर डी इज करेक्ट। 9.936. डी ऑप्शन आ रहा है 9.936। यस यस सर। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा एच अपॉन 2r। याद है फॉर्मूला ये सभी को? बोलिए। यस सर। और थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, आप जो भी वैल्यू आएगी यहां से, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड सारे न्यूमेरिकल आते हैं इसके। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन सी द सॉल्यूशन। आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एल अपॉन जो भी आपने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था टेन थीटा से, उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से किसी से भी आप निकाल सकते हैं, देन यू विल गेट 9.82 डिग्री। नाउ यू कैन सी द गेट 2011, the maximum possible draft in cold rolling of sheet increases with, बताइए। A। The maximum possible draft in cold rolling of sheet increases with increase in coefficient of friction, decrease in coefficient of friction, decrease in roll radius and increase in roll velocity। अगर मान लीजिए इसका आंसर, एक मिनट रुकिए, मैं पूछता हूं किसी से भी महानुभाव से जो सो रहे हैं, या तो अब भाग जाएंगे, अभी एकदम देखो कम होने लगे। अर्चना बेटा आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सुन रही हैं? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? स्क्रीन दिख रही है आपको? देखो अभी आपने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं आपको, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला अभी याद है आपको डेल्टा एच का? डेल्टा एच के बारे में पूछ रहा है, म्यू स्क्वायर बाई आर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अर्चना बताओ बेटा? ये कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ शीट इंक्रीजेस। अगर डेल्टा एच की वैल्यू इंक्रीज कब होगी? किस बढ़ाने से या घटाने से? ए वाला। डी। ए। ओके, वेरी नाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। गुड। दक्ष आप सुन रहे हैं? दक्ष राजेंद्र सिंह, यू आर नॉट प्रेजेंट। ओके, बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं अभी एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जिनको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेंगे, उनके चक्कर में ये ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट का फॉर्मूला है। यस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गेट 2013 में भी आई है। रोलिंग प्रोसेस में दो स्ट्रेस काम करती हैं, कंप्रेशन एज वेल एज द शियर। याद रहेगा आपको, ये याद रखना है, जो डिफॉर्मेशन होता है रोलिंग प्रोसेस में वो बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एज वेल एज द शियर। इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल है, ये गेट 1998 में आया है। ए स्ट्रिप, इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से आप करके लाइएगा, या अगर जो लोग इसको सॉल्व कर लें इसका आंसर मुझे भेज दें। ठीक है, आप कर लेंगे इसको? नमन सर ट्राई कर लेंगे। देखेंगे। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे भेजना है आपको अपना आंसर। ये थोड़ा सा मतलब है इसमें ट्रिक, आप लोग इसको कोशिश करेंगे, जो लोग इसका मतलब चाहते हैं कि हम लोग गेट का तैयारी करना है। इस तरह की भी कंप्लेंट मेरे पास आ रही है, बोले सर आप गेट का इतना क्यों कराते हैं गेट के क्वेश्चंस,
हमें नॉर्मल क्वेश्चन कराइए, जबकि गेट में क्या है, बहुत सारा वैरायटी रहता है, वो सारा कुछ कवर करके ही चलता है। ये तो हलवा है, चलो हलवा थोड़ी ना खाना। हलवा है। नहीं, गेट के लिए करें तो सही भी, आगे जाके भी तो गेट ही करना है ना। हाँ वही है, लेकिन चलिए ठीक है, आप इसको इसको कैसे करेंगे पहले पढ़ के देखो, क्या आपको लोग आप कर लेंगे इसको। ये क्या कह रहा है, विद ए क्रॉस सेक्शन 150 क्रॉस 4.5 mm इज rolled with 20% रिडक्शन ऑफ एरिया। क्या बात कही है इसने, इसने थिकनेस के बारे में नहीं बोला है, परसेंटेज रिडक्शन हुआ है एरिया में, ठीक है। यूजिंग 450 mm diameter rolls, the angle subtended by deformation zone at the roll center is, क्या पूछ रहा है, क्या Angle by एंगल ऑफ Angle बाइट। by- हाँ तो ये आपको बताना है, कल मैं इसको कराऊंगा, आप जो इसको कर लें मुझे भेज दें अपना आंसर। सो विल सी यू सर इन द नेक्स्ट एरिया क्लास। कम हुआ है इसमें, ये थोड़ा हुआ है। हाँ एरिया रिड्यूस हुआ है ना, एरिया ही तो रिड्यूस होता है। नहीं बढ़ता है ना यस सर, वो H1 सर H2 रोलिंग के प्रोसेस के अंदर आती है तो। नहीं किसने कहा, एरिया रिड्यूस हुआ है 20%। सर स्ट्रिप की सर जो वो होती है विड्थ, वो इंक्रीज नहीं होती है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, देखो कोई पर्टिकुलर इसने ये तो नहीं बोला कि कौन सा टॉप एरिया या बॉटम एरिया, कुछ भी डायमेंशन है उसकी, कोई एक सेक्शन, क्योंकि उसमें तो टोटल कितने फेस हैं, एक टॉप सरफेस साइड वाला रहे हो गया, और एक आपका जो फ्रंट क्रॉस सेक्शन है वो हो गया, 3 क्रॉस सेक्शन बनते हैं अगर हाँ, देख। वो फ्रंट ही रिड्यूस हुआ है थिकनेस उसका। हाँ तो वो इसमें मेंशन नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल बनाया गया है कि एरिया रिड्यूस हो रहा है 20%। तो बताइए कितना सबस्टैंडर्ड एंगल है, और डायमीटर दे रखा है आपके रोलर का, ठीक है। सो विल ओके सर, क्लास, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।